ਸਤਿਕਾਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਚੀ ਵਾਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਰਹਿਰਾਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਕੀਰਤਨ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਆਓ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਸੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਹੈ। 31 ਰਾਗ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਾਗ ਹੈ ਬਸੰਤ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ। ਰਹਾਉ ਵਾਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਜਾਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਬੋਲ ਰਾਮ ਰਾਮ। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਾਮ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਮ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਪਰਿਆ। ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਇੱਕ ਅਰਥ ਹੈ, ਗੋਪਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਅਰਥ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਅਰਥ ਹੈ। ਰਾਮ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਿਖਿਆਨਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਉਹਦੇ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਤਿਸ ਪੈ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਅਵਰ ਅੱਲਾਹ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜੇ। ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਉਹ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੈ, ਰੱਬ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭੈ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ, ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਕਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਨਾਨਕ ਕਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿਸੈ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਦਾ। ਕਿੱਥੇ? ਜ਼ਾਹਰ ਮਲੇ ਵਟ ਜ਼ਾਰਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਪਾਰਟੀਕਲਸ। ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਜ਼ੂਮ ਕਰੋ, ਇੰਨਾ ਅੰਦਰ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਲੈਵਲ, ਐਟੋਮਿਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਨਿਊਟਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜ਼ਾਰਾ, ਟੂ ਦ ਸਮੋਲੈਸਟ ਐਂਟੀਟੀ ਨੋਨ ਟੂ ਦ ਹਿਊਮਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜ਼ਰਾ। ਟੁਡੇ ਦ ਮਲੇਵਟ ਜ਼ਾਰਾ, ਪਾਰਟੀਕਲ। ਨਾਨਕ ਕਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿਸ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵੇਖਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਿਸ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਸੇ। ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਤਿਸ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਕਿੱਦਾਂ ਜਗਾਉਣੀ ਹੈ? ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਟੀਚਿੰਗ। ਕੇਵਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਣ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਲੰਗਰ ਖਾ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਣਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਾ ਲੱਗਣ, ਬਟ ਸੱਚ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬੇਸਿਕ ਪੜ੍ਹਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਟ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ABCD ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਮਾਇਆ? ਇਹ ਥੋੜਾ ਖੁੱਲੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਏ। ਪੌੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਰਜਪਤ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਆਏ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ। This is the first step.
तो अगे की इत्थे जाना? डू वी हैव अ प्लान व्हेन वी गो? ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲ 'ਚ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਆਤਮਾ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਆਪਾਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਰਾਤ ਆਈ, ਫਰਾਈਡੇ ਹੈ, ਚਲੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਗਏ। ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲਿਵ ਇਨ दैट। बट आप गुरु को आए हैं, इतने कुछ सीखना, इतने पौड़ियां चढ़निया ने। तू गुरुद्वारे इस वास्ते आया है बंदा, तू एक मकसद लेके आया कि पौड़ियां चढ़ के तू किते पहुंचना है। जब जिस शहर में रोज आप सवेरे पढ़ते हैं, जब पढ़ते सी एक रात पौड़ियां चढ़िए, तेनू चढ़ने पैने, एक जर्नी है, सानू ओदे रस्ते दे उत्ते तरना पैना। ते महाराज जी कहते जिथे रस्ते के उत्ते तू जाना, तू गुरु को आना है, गुरु का शब्द पढ़ना है, ये की है इन्हें समझ के अपनी जिंदगी के अमल करना। बाणी बार बार कहती है परमात्मा केवल एक थान ते नहीं है, असी बना के रखा कि रब सचखंड विच है, केवल गुरुद्वारे। कहते मैनू ना एक दिन मेरे कहते गुरुद्वारे ना झूठ बोलिया कर, उस मसला हो गया सी, मैनू मैं छोटा सी ना, कहते गुरुद्वारे नहीं झूठ बोलीदा, तो मैं उन्होंने आख्या आ जा भैन जी आप सड़क के बाहर जाके गल कर लेंगे हैं, उत्थे आप झूठ बोल सकते हैं कि उत्थे रब नहीं, रब सारे थान ते है। गुरु नानक कहते हैं नानक का बादशाह दिसै ज़ाहरा। कबीर साहब भी बार बार इस गल कहते हैं कि मेरा परमात्मा सारे दे विच है, दिसेगा जिन्हें उन्होंने भालिया है। गुरसाखी जोत प्रगट होई, गुरु की सिक्ख्या ये जोत प्रगट करेगा। जे असी गुरु की सिक्ख्या सुनी होवे, कमाई होवे, तां प्रगट होए। जिस बंदे ने सुनिया, जिस बंदे ने इनू कमाया, उन्हें लाहा लिया। जे को खावे, जे को पुंजै, शब्द आया जे को, जे को, whoever, कोई भी, भावें वो पंडित होवे, भावें वो ज्ञानी होवे, भावें वो किसी भी धर्म का होवे, पापी होवे, भगत होवे, जे को, whoever, भावें वो मनता होवे ना मनता होवे, भावें उन्हें बेअंत पाप कीते ने, जो भी है किसी भी अवस्था दे विच है, क्योंकि बाणी ने इत्थे आख्या जे को, ये किते तर्क नहीं करता, असी तर्क करते हैं। Oh, I am not capable of, oh, you are not, cannot do this, you cannot do this, only I can do this. We tend to judgmental, असी तर्क करते हैं, पर गुरु नहीं। जो शरण आवे तिस कंठ लावे, वो किते नहीं पूछता तेरे पिछले कर्म की सी, तू सवेरे पाठ किया, गुरु साहब नहीं, तुसी इतिहास पढ़ के देखो, इत्थों तक मैं कहता साडे भाग चंगे ने कि साडे कोल बाबा नानक है। क्यों? आम करके धर्म स्थानां तो पापियां नूं धक्के मार के बाहर कढिया जांदा सी, तुसी आ नहीं सकदे, पर तुहाडा बाबा नानक ना उन्हां दे घर दे दरवाजे खड़का के गया, सजना दरवाजा खोल, मैं तैनूं मिलण आया। इन्ना वड्डा हिरदा है गुरु नानक का, इन्ना वड्डा हिरदा कि जे किसी बंदे ने अपना जिंदगी गवा ली है, पुठे रस्ते पै गया है, गुरु नानक कहते हैं क्यों ना आप इन्हां कोल जाइए, मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान। इन्ना वड्डा है दिल दा। नहीं तो आप ना एक दूजे नाल एक छोटा जिहा शब्द भी बोल दिए, आप 30 40 50 साल का ना झगड़ा करके बैठे होते हैं। इत्थों तक कि साडे बच्चों को कहते हैं ओहदे बच्चे नाल बोली ना। किन्ने ने भरा भरा लड़ते हैं, जेडे उन्हां दे बच्चे होंदे ने, कजन ब्रदर्स एंड कजन सिस्टर्स डोंट टॉक। क्यों? भरा भरा लड़ते, कसूर भरा भरा दा है, ते ओहदा जेड़ा नतीजा कौन है, अगली पीढ़ी पे करती है। नफरत असीं पा दिंदे, ये साडा नेचर है। पर वाहिगुरू जी नहीं, गुरु साहब नहीं, गुरु साहब जी तो मेहरबान है, वो बख्शंद है। इतिहास पढ़ के देखो, जोत जे रब की प्रगट करनी है तो तेनों की करना पएगा, कितने दूर जाने की लोड़ नहीं, कुछ बहुता तेनों करने की लोड़ नहीं, तू केवल तेरे गुरु को आ इत्थे बह के गुर साखी जोत प्रगट होई, गुरु की सिक्ख्या ये जोत तेरे अंदर विच प्रगट करके तू वेखेगा भाई हाँ इहदे विच भी रब है। इतिहास गवाह है भाई कन्हैया, इतिहास गवाह है भाई कन्हैया। दुश्मन जेड़े हार गए ने उन्होंने पानी पिया पिलाउंदा, दुश्मनां नूं
के भाई कन्हैया जी दिंदे ने, उन्हें तर्क नहीं की पे तू सिख है कि दुश्मन है। उन्हें कहा मैनू तो ये गुरु गोबिंद सिंह का रूप ही दिसता है। शिकायत पहुंची, भला करो ता भी दुनिया कहती कुछ, बुरा करो ता भी कुछ कहती। तुसी चंगा करो ता भी लोगों ने 100 महीने कटने ने, बुरा करो ता भी लोगों ने 100 महीने कटने। करो भी प्रॉब्लम है, ना करो भी प्रॉब्लम है। भला करो ता लोगों को मुश्किल है, बुरा करो ता भी मुश्किल है। ये दुनिया की रीत है। बट जिन्हें देख लिया कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी रब है, कहता मैं गुरु गोबिंद सिंह जी मैनू नहीं उत्थे कोई दिसदा कि सिख है कि दुश्मन है, मैनू तो सब तेरा ही रूप दिसदा है। राम वो परमात्मा जो सारियां दे विच है, केवल एक थां ते नहीं, सारे संसार दे विच, सारे ਉਹਦੇ क्रिएशन दे विच रमिया होया। कहते राम एक बारी नहीं 2 बारी राम बोल। कहते उस राम बोल मतलब कि बोल। फिर दोबारा याद किया राम राम बोल राम राम। क्यों? रब का याद ना करना होवे बहुत औखा है, भुल जाइए। बाकी काम करने होवे चेता रहते हैं, पर रब का ना लेना ना 7 वज जाते, फिर भी रहरास करने का टाइम नहीं सानू मिलता। बाणी फिर रिपीट करती है राम राम बोल राम राम। नाले उस वाहिगुरू जी का नाम आप बुला देता है। कहते की करना? राम राम बोल राम राम। अगे कहते ने त्यागो, त्याग दे, छड़ दे। त्यागो अगे पुराने होंगे सन, सारा कुछ छड़ के जंगलों के विच जाके रब की पाउण की कोशिश करते सन। सिक्खी इस पासे नहीं कहती, सिक्खी कहती है गृहस्थी जीवन जीना है। गृहस्थी जीवन जींदिया होया त्यागो मन के सगल का, जिन्ने तेरे मन के काम ना सारे छड़ दे। हो सकता है ਹੁਣ रोटी खानी भी मन का काम होंदा है, ये भी मन होंदा। जे मन का काम नहीं होंदा तो आप क्यों कहते रोज दाल ही बनाते। मन करता कि मैं जिथे जाना भलके मैं इको जाना, मैं उन्हीं प्लान बना लिया, मैं सोया पीना, मैं आ खाना, मैं आ खाना। ये ढिड ने नहीं आख्या, मन ने कीता। दुनिया की दौड़ जेड़ा 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 शरीर ना इनू पालना है। आसा दी बार कहती अन्न ना खाया साध गवाया। बड़े बड़े क्लियर शब्द ने, अन्न ना खाया साध गवाया, वस्त्र ना पहरे। जे अन्न नहीं खाता वह साध गवा बैठा। इत्थे नहीं त्यागो मन के सगल काम मीन्स बहुते जेड़े तेरे मन के जेड़े काम होंदे ने, बाकी कामां वास्ते तो तू बहुत विचार करदा, पर जो उस रब की गल आउंदी है उस वेले तू उहदा उन्ना नहीं ध्यान रखदा। थोड़ा चल उस पासे करके तू उहदा नाम लै, उहदे गुण तू सोच, उहदे गुण के बारे तू विचार कर। त्यागो मन के सगल का, उस रब का नाम वास्ते तेनों थोड़ी डिसिप्लिन बनानी पड़ेगी कि इन्ने बजे तो ला के इन्ने बजे तक मैं उस गुरबाणी में पढ़नी है, मैं पाठ करना है। थानू डिसिप्लिन बनानी पड़ेगी। तो जिन्होंने डिसिप्लिन बनाई है उन्होंने कुछ पाया है। हुण वेखो जिहड़ा बच्चा ताइक्वांडो सीखदा ना, एवरी सैटरडे आएगा फ्रेंड, एवरी सैटरडे सवेरे 8 बजे तो ला के 10 बजे तक जाता है। 12 साल के 13 साल उन्हें पढ़ाई की, फिर जाके उन्हें बेल्ट ब्लैक बेल्ट मिली है। उन्हें ब्लैक बेल्ट 12 साल जाके बाद मिली है। क्यों? हर सैटरडे उन्हें अपने बाकी काम त्याग के उधर ध्यान लाया, ध्यान ला के फिर उन्हें कुछ मिलिया। आपे बीज आपे ही खाओ। जे तू दरान खाना है तो तेन दरान बीजना पएगा। रंबूटान बीज के तू अरदासा कर, हे मालिका दरान ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ प्रगट कर दे। तो मेरा ख्याल आप उन्होंने आखांगे भाई जी तुसी दरान का बीज ला दो, सौखा काम करो, क्यों औखा कर रहे हो? जे दरान खाना है दरान का बीज बीज, आपे बीज आपे ही खाओ, पुठे काम ना करो। नहीं तो साडी हालात पता की है, बीजा बिख मंगे अमृत। मेरे ख्याल आज टीका थोड़ा ज्यादा ही है, सहार दिओ। साडा काम ये है, बीज असी बिख ना बीजते हैं, जहर बीजते हैं ते मंगते असी अमृत। अगे शब्द आता वेखो ये नहीं आओ, ये कित्थे दा नहीं आओ। व्हाट जस्टिस इज दिस? तू जहर बीजी है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ तू अमृत मंगदा। तेरा बच्चा पढ़ नहीं रहा, सारे
बीजा बिख जहर बीज रहा जहर है। तो 9वें महीने जो एग्जाम बहना होता तो आप आके कहते हैं मंगा अमृत मैनू ए दे। तो गुरु साहब जब कहते वेखो ए नहीं आओ, हाउ कैन इट बी? विचार करके वेखियो। मैनू पता कई गल हजम नहीं होनी, पर तुम सोच के वेखो ये आसा की वार की बाणी है। असं इतने खड़े हैं, त्यागो मन के सगल काम। जो कुछ लेना है वो सानू कुछ त्याग करना पेगा। जे उस बच्चे ने काली बेल्ट लैनी है वो हर सत ने ट्रेनिंग करता है, जेड़ा तू बीजेगा वो तेनों मिलेगा। असी करते कि बीजा बेखा मंगा अमृत। बच्चे साडे पढ़ते नहीं, असी की कीता वो जी ये ना बच्चे साडे पढ़ते नहीं, बस इन्हां दा इदां ही है, बस ओहदे भाई छड़ देंदे। वाई? बिकॉज वी आर लेजी। सौखी गल है, असी कुछ नहीं करते। फिर गुरु को आन के अरदास करांदे आ, बाबा जी पढ़ाई में सफलता हो। जां ग्रंथी को आन के आपां कहंदे आ बाबा पढ़ाई में सफलता हो। कईयां नूं गल चंगी नहीं लगनी, पर ये गुरबाणी दे विचार है। जे साडे बच्चे नहीं पढ़ते, असी जहर बीजिया है, उस जहर दे विचों तुसीं अमृत दा मंगो, किते प्रगट नहीं हो सकता। जे ये लेना है ना, तुहानूं कमाई करनी पेगी। तुसीं वेखो चीनियां दे बच्चे भावें रेस्टोरेंट दे विच होण ना, रोतां हुंदी उन्हां कोल बिठा के कहते ने यू स्टडी हियर, आई एम वर्किंग अर्निंग मनी, यू स्टडी। नहीं पढ़ते तो लाउंदे ने, नाल बिठाउंदे ने, बह के पढ़दे ने। की पढ़िया अज आ की है, वो एफर्ट पाउंदे ने। क्यों ये नहीं लैंदे? किन्ने किन्ने घंटे पढ़ते वो पढ़ते ने, उन्होंने ये मिलता। जेड़ा भी पढ़ेगा उन्होंने मिलेगा। जे तुसी गड्डी सीखनी है ना चलानी, तुसी कदे स्टेयरिंग नहीं फड़ी, तुसी सुपने ना लो कि तुसी बिना गड्डी चला के जानी। गल लॉजिक है ना, कुछ वड्डी गल नहीं है ना। बीजा बिख मंगे अमृत, असी आ कर रहे हैं। तो गुरबाणी वेरी क्लियर, देखो ये नहीं आओ। पर जस्टिस इज दिस, तू बीज कुछ होर बीजिया है, मंग कुछ होर रहा, वो मना। जे तू ए लेना है तो ये कोल बिठा के तू 2 घंटे पढ़ा, इनू पढ़, कुछ कर। जो तू वो कुछ पाऊंगा तो कुछ उगेगा। त्यागो मन के सगल काम। जे कुछ लेना है सन त्याग के उस पासे ध्यान देना पेगा। बाबा जी कहते उस रब का नाम याद कर, थोड़ी जी डिसिप्लिन पा के उसका नाम याद करने वास्ते, बाणी पढ़ने वास्ते, पाठ करने वास्ते। कहते की होएगा? जिस बोलत जेड़े बोलन दे नाल मुख पवित्र होए, जेड़े वाहिगुरू जी का नाम बोलन विच ओदे गुण कमाउण विच तू पवित्र होएगा। क्यों? पवित्र मतलब मीन्स प्योर। प्योर है पवित्र। कहते जिस वेले तू रब का नाम लएगा, ओदे गुण तेरे अंदर जाणगे, तू पवित्र होएगा। क्यों पवित्र होएगा? क्योंकि सब तो पहला समझण वास्ते है कि असी मैले, असी मैले मूत पलिती कपड़ होए ते साबुन लइए भरिए मत पापा कै संग। मत पापा नाल भरी हुई है, वो धुप है। नाम है कै रंग। नाम का रंग उन्होंने धोंदा है, मन नूं, शरीर नूं नहीं। कहते भरिए मत पापा कै संग, वो धुप है। नाम है कै रंग। हुण नाम क्यों तुहानूं पवित्र करता है, ये भी समझना जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो रब आप पवित्र है। थापिया ना जाए, कीता ना होवे, आपे आप निरंजन सोए। निरंजन मतलब जिन्हों माया अफेक्ट नहीं करती, जेड़ा प्योर है, स्पॉटलेस, वो निरंजन है। उन्होंने माया अफेक्ट नहीं करती, प्रभाव उत्ते नहीं पैंदा। तो जिथे रब पवित्र है, उसका नाम भी पवित्र है। ऐसा नाम निरंजन जे को मन जाने मन, उसका नाम भी पवित्र है। जिस वेले तू उसका नाम लैंदा है, उसके गुण तेरे विच वसाउंदा है, तू पवित्र होता है। जिस बोलत मुख पवित्र होए, जिस सिमरत निर्मल है सोए, तू निर्मल हो जाएगा, स्पॉटलेस। क्योंकि उसका नाम भी निरंजन है। अगे महाराज कहते जिस आराधे जब कछ ना कहे, जब जिसकी सेवा
सब कुछ लै, ਉਹਦੀ सेवा नाल तेनू सब कुछ मिल जाता है। पर याद रखना थले आके त्यागो मन के सगल का। इत्थे मैं एक मिनट होर रुकना चाहूँगा। साडे आम करके कहते ने सेवा करो की हुंदा मेवा मिलूगी। आम करके असीं आह ही कहते हैं, इत्थे असीं खड़े हैं, सेवा करो तो मेवा मिलूगी। मैनू भी आख्या सी मुंडिया सेवा कर, पढ़ाई में तू कामयाब हो जाएगा। मैं क्या अच्छा, when I was very small, मैं क्या yes sir, so you do सेवा, you can be excellent in studies। सेवा करो मेवा मिलूगी। सुखमनी साहब पढ़ते हो ना। हुण इत्थे सुखमनी साहब जी दी जो मैं पाठ किया ना, एवरी वैनसडे बीबियां दा दीवान हुंदा सी सुखमनी साहब दा, मैं गुटका लैके मैं पढ़दा मैं रुक गया। जो पंक्ति आई, की पंक्ति आई सुखमनी साहब जी ते, सेवा करत होए नहकामी। सेवा का मुल बहुत वड्डा है, इन्हू सस्ते सौदे दिनां विचों। सेवा is like an express train on the journey to reach God। सेवा करत होए नहकामी, ट्रांसलेशन होते सेवा itself means selfless service। जिस सेवा दे विच तू कुछ रख के कर रहे हैं कि मैं अहुदा लेना है तो मैं सेवा करदा। इलैक्शन आएगी, तुसीं देख लियो सारे सड़क धोणगे, घर घर विच जाणगे, सेवा असीं करदे जनता दी। जिथे इलैक्शन होनी है जां किथे भी तुसीं देख लियो, जां तां अहुदा लैण वास्ते जां तां अहुदे दे कि मैं हुण MP हां, मैनूं सेवा करनी पएगी, मैं प्रधान हां, मैनूं सेवा करनी पएगी। उस तो बाद कुछ रीजन है साडा, पर महाराज कहते सेवा करत होए नहकामी। जे तू निष्कामता होके करेगा ना, तेनू की मिलेगा? जिसको होत प्राप्त स्वामी। वो तो स्वामी की गल कर रहे हैं, क्योंकि तेरा जीवन का मकसद किस वास्ते है भाई? प्राप्त मनुख दे होया गोबिंद मिलन की। ये तेरी बड़िया उस रब नूं पाउणा है, ते उस रब नूं पाउण वास्ते गुरु साहब जी कहते सेवा करत होए नहकामी, जिसको होत प्राप्त स्वामी। एक रास्ता उस रब नूं पहुंचण वास्ते असीं इहनूं किते होर लैके बिठा के बैठे। महाराज जी कहते उस रब दा नाम बोल, जिस बोलन नाल तू पवित्र होएगा, जिस सेवा के नाल तैनूं सब कुछ मिलेगा। अगे महाराज जी कहते महाराज जी कहते जिसके तारे तरण आकाश, जिस दे नाम दे नाल सारा संसार खड़ा है। धरती एक जगह ते खड़ी है, किद्दां खड़ी है, किहड़ी शक्ति नाल खड़ी है? मैं होमवर्क देना तुहानूं। सुखमनी साहिब जी की 16 अष्टपदी जिहड़ी आउंदी है, आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। अष्टपदी जिहड़ी अगली अष्टपदी आएगी ना, इट डिस्क्राइब्स इन डिटेल कि रब ने किद्दां उहदे नाम दे नाल सारा उहदा सहारा। तुसीं होमवर्क कर लिओ, मेरे कोल समा नहीं। अगे महाराज कहते घट घट जिसका है प्रगास, कहते ओ राम जिहड़ा सारे संसार विच रमिया होया, सारियां दे विच हैगा, तेरे विच भी है। डू नॉट अंडर एस्टीमेट योरसेल्फ कि मैं रब दे लागे नहीं आ सकदा, रब तेरे विच है, साडे विच है। कहते घट घट जिसका है प्रगास, कहते जिस सिमरत पतित पुनीत होए। कहते इत्थे पतित भी पुनीत हो जाते हैं, पाप धो के तुहानूं पवित्र कर दिंदा। क्यों? हुण इदां कर लो, जिहड़ा बंदा चोरी करदा पाप है ना, हुण उहने अपना पाप छड्ड दित्ता, उहने गुरु की बाणी सुनी कि हक की कमाई नहीं खानी, उहने गुरु का शब्द सुनिया कि किरत करके खाना है, उहने गुरु का शब्द सुनिया कि अपने हथी नाल किरत करके खाना है, उन्हें चोरी छड़ दी। पतित सी पुनीत हो गए, जां चुगली करते सन। गुरु साहब ने कहा कि चुगली नहीं करनी, निंदिया नहीं करनी, उन्हें छड़ दी। वो गुण मेरे विच वस गया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ वस गया, वो हुण पाप ਉਹਦਾ निकल गया, हुण ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पुण्य है। कहते जिस वेले बंदा उसका गुण सिमरन करके उन्होंने याद करके अंदर लैके आउंदा है, ਉਹਦਾ जीवन फिर पवित्र हो जाता है। गुण जिहड़ा ਉਹਦੇ नाम ने, जे वो मेहरबान है, जे तू भी मेहरबान हो जाए, वो दया करता है, तू भी दया
दया करता है, तू फिर पवित्र हो जाएगा। महाराज कहते जिस सिमरत पतित पुनीत होए, अंत काल फिर ना रोए। फिर उन्होंने रोना नहीं पैंदा अंत दे वेले। नहीं तो कदी कदी साडे कोल 30 साल हो जाते हैं गलती कीतियां नूं, 30 साल बाद असीं जाके कहते हैं कि मैं उन्होंने क्यों आ क्या बैठा। अगे महाराज जी कहते सगल धर्म में उत्तम धर्म, कहते सारे धर्मां तो उच्चा धर्म केड़ा है? जेड़ा उस परमात्मा का नाम ते उहदे गुण नूं अपने जीवन दे विच वसाउंदा है। सुखमनी साहिब विच भी ये पंक्ति आउंदी है कि सारे तो उच्चा धर्म केड़ा है? किसी खास धर्म नूं नहीं आख्या, कहते जेड़ा बंदा उस रब का नाम ते उस रब के नाम के गुणां नूं अपने जीवन विच वसाएगा, वो धर्म उच्चा है। सगल धर्म में उत्तम धर्म, कर्म क्या ऊपर कर्म, कहते वो भी कर्म सब तो उच्चा है जिथे उहदा नाम राम राम बोल राम राम अप्लाई किया जाता है। अगे महाराज कहते जिसको चाहे सुर नर देव, संत सभा की लागो से, जिन्हों सारी दुनिया सुर नर देव कोई भालते ने, तुसी गुरु की सेवा गुरु की संगत करके उन्हें प्राप्त कर सकते हो। अगे महाराज कहते आद पुरख जिसका किया दान, आद पुरख उस परमात्मा जो समा तो पहला सी, आद पुरख प्रवेदित सारे थाते, जिन्हें उन्होंने निधान खजाना दिता, जिसकी गतमित कही ना जाए, उसकी असी गतमित नहीं कर सकते क्योंकि परमात्मा अपार है। हुण नदी का कंढा होंदा ना तबे बैंक इस पासियों तुसी उस पासे नूं वेख सकते हो कि पार उत्थे ताईं, उहदा एंड उत्थे है। अपार मीनस उहदा एंड ही है, कित्थों शुरू है तो कित्थे खत्म, अपार। कहते वो परमात्मा जो सारे थां ते वसदा है, उहदा उहनूं समझना वो साडे समझण तो बाहर है, अगोचर। तां तिसकी गतमित कही ना जाए, पर नानक गुरु नानक कहते ने नानक जन हर हर ध्याई। कहते मैं बस ओदे मैं उस परमात्मा दे बस केवल गुणां नूं ध्याउंदा, हर वेले मैं उस गुणां नूं अपने जीवन दे विच उहनूं ध्याउंदा है कि उन्हें की किया, ਉਹਦੇ गुण की ने, भी परमात्मा की है, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ सिस्टम चल रहा है, किदा ਉਹ कितना ऑपरेट कर रहा है, वो पुरख हो के कितना सारा कुछ चला रहा है, मैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मेरा ध्यान लाया। महाराज कहते राम राम बोल, राम राम त्यागो मन के सगल काम। कहते उस परमात्मा का नाम नूं याद कर। आओ आप एक होर शब्द नाल जुड़ना, बंदना, हर बंदना इसे लड़ी के विच है। फिर आप छोटी जी विचार करके फिर आनंद सर्कल करो। Good
वंदना हर वंदना गुण गावो गोपाल राय। वंदना मतलब कि नमस्कार। मैं उस परमात्मा को बार बार नमस्कार किया करता, सिर पैर झुकाता, तो मैं फिर की करता, गुण गावो गोपाल राय। गुण गावो, गुण मीन्स वर्चू, नाम ओदा जपना है। गुण मतलब ओदे वर्चूज, वो किसी ते रहमत करता है, उन्हें महरमत आख्या। वो मेहर करता है, उन्हें मेहरबान आख्या। वो धरती नूं पालदा है, गो मतलब धरती, पाल मतलब पालदा, गोपाल। जिहो जे ओदे काम ने ओहो जिहा नाम पिया। कहते मैं ओदे गुणां नूं गाउंदा। जे रब मेहरबान है, गुण गाउणे ते मेहरबान मेहरबान तू नूं भी करना पएगा। जे रब दयाल है, तेनूं भी दया करनी पएगी। टू बी मर्सीफुल अपॉन समवन, ओदे गुण अपने जीवन दे विच अप्लाई करने, केवल बोलना नहीं। बोलना शुरुआत है। ਜਦੋਂ मैं पहला आख्या किंडरगार्टन जाना जरूरी है, पर उत्थे नहीं रुक जाना। मैं एग्जांपल दवां, तुसी आखो कुरान लाजू साइन बोर्ड लगा, तुसी पढ़ी चलो पढ़ी चलो पढ़ी चलो। हुण मैं सलीम रिवर नूं जाना, उत्थे कैमरा लगा AES, इन्हें कह दिता कुरान लाजू, तो मैं भी कही गया कुरान लाजू। मैं बोलता रहा, बट मेरी स्पीड 140 है। जो कैमरा आएगा की होएगा, उन्हें वह काम करना, उन्हें कैमरे ने घर लाना, सामान मेरे घर आना, 300 मैनू देना पैना। तो जे मैं आखा मैं तो क्या सी कुरान लाजू, तू कहता तो है बट कमाया नहीं। कहना भी जरूरी है, कमाना भी जरूरी। गुण गावो, ओदे गुणां नूं गाउणा है, किस वास्ते याद रहे कि उन्होंने अप्लाई करना तेरी जिंदगी दे विच। गुण गावो गोपाल, वो धरती नूं पालण वाला गोपाल राय। परमात्मा नूं आम करके की आख्या जाता है, ते कहंदे क्यों ओदे गुण गाउणे ने, ते कहंदे अगे वड्डे भाग भेटै गुरदेव। बहुत वड्डे भागां नाल असीं गुरु के चरनां दे विच जुड़े, सारे दे वड्डे भाग। If you are able to come and sit, if you are able to read, साडे भाग चंगे। हाँ जी, वड्डे भाग भेटै गुरदेवा। अगे साहब गुरु साहब जी कहते कोट पराध मिटै हर सेवा। देखो असी सेवा नूं किथे जोड़िया है। गुरबाणी की कहती है, जे सेवा निष्काम नाल करदा तैनूं रब मिलदा है। हुण बात गुरबाणी कहती है, जे तू सेवा करेगा तेरे पाप धोते जाते हैं। कहते कोट पराध मिटै हर सेवा, उसकी सेवा करन दे नाल मेरे पाप धोते जाते ने। अगे कहते चरण कमल जाका मन रखता है। हुण चरण कमल आम करके पैर नूं आख्या जाता है, बट साडा गुरु शब्द है। शब्द गुरु सुर धुन चेला। चरण कमल विच शब्द जिहड़ा है असीं उहदे विच लीन होए, सानूं वो शब्द याद है। चरण कमल जाका मन लाता है, तेरा ध्यान शब्द दे विच। हाँ जी, मेरा ध्यान शब्द दे विच है। चरण कमल जाका मन लाता है, सोख अगन तिस जन ना व्यापा है। सोख मीन सैरो, वो तेनूं अफेक्ट नहीं करता। जिहड़ा शोक होंदा है उसकी अग तेनूं लगदी नहीं, क्योंकि तेनूं शब्द मैं पहले ही समझा दिता। श्लोक पहले 9वें पढ़ते कि बुरा होना है। गुरु साहब ने कहता जो उपजै सो बिन सैफरो आज के काल। मन ने तैयारी की होंगी कल को ये होना है, उन्होंने सोक नहीं लगता, क्योंकि उन्हें मन को पहला ही हिलाया होया। सोक अगर इस जल ना व्यापै, महाराज कहते सागर करिया साधु संग। भावजल संसार तो उदों आप तरांगे जो गुरु के चरणों में आवांगे। अगे कहते निरभव नाम जपो हर रंगे, उस परमात्मा का नाम ओदे गुण गा। कहते पर धन दुख किछ पाप ना फिर। पर मीन्स पराया, धन मतलब प्रॉपर्टी या धन कह लो, वेल्थ। पराया धन ध्यान दो, पर धन दुख किछ पाप ना फिर। ना किसी का तन पराया धन वाल तू वेखदा है, ना कुछ तू पाप कमाउंदा है, ईवल डीड्स। जे तू ये ना करेगा की होएगा? महाराज कहते जम जंदार ना आवे नेड़े। हुण जो आप कुछ काम गलत नहीं किया, थानू ना समान होना ना तुहाडे घर पुलिस होनी। तुसीं किसी के घर जाके 4 गालां सुना के 3-4 मुक्तियां दे के घर मुड़ के आओ तो आखो कि मैं आराम नाल बह के सोवांगा, उन्हें पुलिस रिपोर्ट देनी है, तेरे घर आके खड़े भी तू क्यों गया?
ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਹੋਰ 4 ਬੰਦੇ ਸੱਦਣੇ, ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਘਰ 4 ਬੰਦੇ ਭੇਜਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਣਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹੀ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬਣਦੀ ਹੋਏਗੀ ਮੂੰਹ ਵੱਟ ਕੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਚਲੋ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਘਸੁੰਡ ਮਾਰੋ, ਮੁੱਕੀ ਮਾਰੋ ਤੇ ਆਖੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਗਾੜੀ ਹੱਸ ਕੇ ਆਖੇ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਗਾੜੀ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਨਾ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਈਵਲ ਡੀਡਸ ਬੁਰੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਧਨ ਦੁਖ ਕਿਛ ਪਾਪ ਨਾ ਫੇਰੈ, ਜਮ ਜੰਦਾਤ ਨਾ ਆਵੈ ਨੇਰੈ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਗਨ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਬੁਝਾਈ, ਨਾਨਕ ਉਤਰੇ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਆ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਆ ਵੀ ਲੈਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਦਰ ਮਿਲੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਪੋਤੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵੇ ਜੀਵਨ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ 80 90 ਆਲਮੋਸਟ 90 ਸਮਥਿੰਗ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਪੋਤੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਰ ਜਾਊਂਗੀ, ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ। 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਪੋਤੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਪਰ ਪੋਤਾ ਆ ਜਾਵੇ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਪਰ ਪੋਤਰਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਖੇਗੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਰਨਾ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਘਟਦਾ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਿਰਲੇ ਕੀ ਹੈ ਬੁਝੀ, ਬਿਰਲੇ ਦੀ ਬੁਝਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਗਨ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਬੁਝਾਈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜਾਂਗੇ ਨਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਆ ਕੀ ਹੈ, ਆ ਕੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਗਨ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਬੁਝਾਈ, ਨਾਨਕ ਉਦਰੈ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਈ। ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ, ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਭਵਜਲ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਆਖਿਓ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਧਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣੀ ਪੜਿਆ, ਨਾ ਹੂੰ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਮੂਰਖ ਮੁਗਦਾ ਜਨਮ ਭਇਆ, ਪ੍ਰਣਤ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੀ ਸਰਦਾ, ਜਿੰਤੂ ਨਾਹੀ ਵਿਸਰੇ। फिर अगला शब्द जो आंदा भाई प्राप्त मन ते बुरिया, गोविंद मिलन की तेरी बरिया, अब का तेरे कितना काम मिल साथ संग पच केवल ना, सरन जाम लग भौजल तरन के जन्म वृथा जात रंग माया के रहाओ। अगे कहते जप तप संजम धर्म ना कमाया। मेरी अवस्था ये है, मैं जप नहीं किया, ना मैं तप किया, ना मैं कोई संजम किया, ना मैं कोई धर्म का काम कमाया। जप तप संजम धर्म ना कमाया, सेवा साधना जानिया हर राया। बट इन्ना कुछ होंदिया होए मैं ये भरोसा लेके आया धन गुरु नानक, कहो नानक हम नीच कर्मा। मेरे नीच बहुत माड़े, लगता कि मैं चंगा हाँ बट मेरे कर्म बहुत माड़े धन गुरु नानक, पर मैं ये भरोसा नाल आया, कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण करेगी राखो तू मेरी रक्षा कर, शरण करेगी राखो शर्मा। Whatever state we are in our life, regardless where we are, ये भरोसा रखो कि तुसी गुरु के दरबार ते आए आ। ये पापियां नूं पनीत करता है, कोई भी आवे कोई बांह फड़ के वो रख लेता है। कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण करेगी राखो शर्मा। मैं इसे भरोसे दे नाल हमेशा तेरे चरणों दे विच आया कि तू मैनूं रख ले। बस यही अरदास है। अरदास करते हैं तो मैनू एक दिन उम्मीद होएगी तू मैनू रख के तेरे चरणों के नाल जोड़ के। ये अरदास है। कोशिश करो, गुरु की बाणी पढ़ो, गुरु के शरण विच आओ, गुरबाणी पढ़ के समझ के अपने जीवन के विच वसाओ। जे सुख लेना है चलो आप विचार बहुती नहीं करनी, गुरु की बाणी पढ़ो, गुरु का शब्द में विचार करके समझो। जिस शब्द को आप समझ के जीवन के वसा के अपने जीवन में पार उतारा कर सकिए। सो आओ आप